Pasighat town, the oldest town in Arunachal Pradesh. The town has a history of record-breaking rainfalls, which makes it a crucial discussion for the proper construction of drainage system here in the region. Today we will do an inspection regarding the drainage infrastructure here in Pasighat town, the headquarters to East Siang district. The monsoon season is here, so let's speak with the locals and visit the drainage areas to get a clear view of the drainage structure here in the town. The previous footages were from this part of this section, and the other rental building here. This is the larger rental building here in Baskota, and the drain water covers this part of the section as well. As you can see, it releases all the fall smell from here, and the locality has to go through this every day, especially during the time of rainy seasons, that is the monsoon. My team is here at Jarkong resident Pasighat. As the monsoon season intensifies, residents of Jarkong in Pasighat, one of the town's most waterlogging prone localities, are witnessing a long-awaited drainage construction project aimed at addressing years of flooding and stagnant water issues. The drainage work, which began approximately a month ago, is being welcomed by the locals living here, who have struggled with severe waterlogging during every monsoon season. Pasighat, located in East Siang district of Arunachal Pradesh, experiences heavy rainfall during monsoon months, making effective drainage infrastructure crucial for the residents living here. However, while the project promises long-term relief, the ongoing construction has created new challenges for commuters. Portions of the road have been excavated, leaving behind muddy and slippery stretches that have become hazardous, especially for the two-wheeler riders. According to local residents, at least 3 individuals riding two-wheelers have fallen and sustained injuries in separate incidents due to slippery road conditions caused by recent rain and ongoing excavation work. Residents have stated that the situation before the drainage project was terrible in this locality, with often water accumulating on roads and around homes. Jarkong is just one of the several locations in Pasighat facing drainage and waterlogging challenges. For now, let's have a look of this area. मेरा नाम आनंद जरंग। और आप कितने टाइम से इधर जारकोंग में बैठ रहे हो? जरकोंग में मेरा बैठने वाला 6-7 साल जैसे हो गया। ऐसे अभी 6-7 years जैसे हो गया। All right, so it's been about 6 or 7 years आप जारकोंग में हो resided. तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ड्रेनेज का, ये तो रिसेंटली शुरू हुआ है ना? It's been 1 month or something. तो उससे पहले यहाँ का कंडीशन कैसा था? उससे पहले का रास्ता जो अभी देखिए, सिर्फ झारखंड सिर्फ नहीं है, बाकी जैसे पासीघाट का कॉलोनी लोग का रास्ता इधर उधर सबको देखिए प्रॉब्लम मतलब ऐसा होता है। किसी में भी रोड का कंडीशन सही नहीं होते, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम था। अभी फिलहाल तो ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इसका भी अभी कितना टाइम लगे उसका कोई आइडिया नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम तो हो रहा है इसमें भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है। तो टू व्हीलर्स लोग को
खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फोर व्हीलर्स तो कैसे भी चल जाता है, टू व्हीलर्स लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रास्ता जो कंस्ट्रक्शन की वजह से स्लिपरी रोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीचड़ ज़्यादा है। तो ये जो ड्यूटी बनता है वो म्युनिसिपल्स का होता है, तो आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस लोकेलिटी 6-7 ईयर्स से, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे जो अथॉरिटी है उनको? जी, मैं तो वही बोलना चाहूँगा, क्योंकि पासीघाट जो है स्मार्ट सिटी है, तो अभी तक तो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने के बाद भी बहुत टाइम हो गया। अभी तक तो ये सब छोटा मोटा काम जो क्लियर होना चाहिए, रास्ता भी सही होना चाहिए, ड्रेनेज, ये सब छोटा मोटा चीज़ है, तो ये सब इसमें पब्लिक को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमें तो देखने को मिला कि बस ड्रेनेज ही नहीं, यहाँ का जो सड़क है ना, जो कच्चा रास्ता है, उसमें भी कुछ इंसिडेंट हुआ था 2-3 डेज अगो में भी, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जी, हम लोग का यहाँ का एक कॉलोनी का बहन है एक, वो मतलब अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ड्रेनेज का, उसका वजह से रास्ता में पूरा कीचड़ होके स्लिप होता है, स्लिपरी रोड होता है, उसमें ये हुआ था, स्कूटी से जो बहन जो चल रहा था, एक्सीडेंट हुआ है, उसको इंजरीज भी हुआ है। तो वो सब प्रॉब्लम सिर्फ एक दो नहीं, क्योंकि बाकी को भी होता है, बाकी को हर किसी को, हम लोग का पहचान में हर कोई नहीं होता है, तो बहुत सारा लोग को प्रॉब्लम होता है, तो एक सिर्फ नहीं है, बाकी कहीं कहीं को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। So hi viewers, I'm here right now seated here with one of the local netizens residing at Banskota, Pasighat. So ma'am, आपका नाम क्या है मैम? ओके ओयर तक है। और आप कितने टाइम से इधर बांसकोटा में बैठते हो? मेरा तो 2 साल हो गया। 10 साल हो गया ना? तो इन सालों में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, क्योंकि अभी जैसे मॉनसून सीजन आ रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, तो इधर नाला का जो पानी है वो पूरा इधर उधर चला जाता है, क्योंकि पासीघाट का ड्रेनेज सिस्टम मेंटेनेंस में नहीं है ना। तो एज अ लोकल नेटिजन ऑफ बांसकोटा आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये पानी ऐसे बारिश में, ये समय में ऐसा होता है, बारिश ज्यादा होने से नौला में तो सब ये जहाँ का जितना ये पासीघाट है उधर नौला में जाता है, तो इसका बाद जाने का बाद उधर डायरेक्ट जाएगा, इसका बाद ओवरटी होने से वापस उड़ता है, यहाँ में ऊपर तरफ आता है पानी जो, हाँ खेती में जाके उधर ये ज्यादा होने से वापस उड़ता है, ये में आता है, वाल से पार होके, डायरेक्ट वाल बनाने से भी वाल से पार होके ये घर अंदर में घुसता है। तो आप जैसे कि बांसकोटा में अब रहते हो, 10 साल से आप रह रहे हो, तो एग्जैक्टली कौन कौन सा लोकेशंस में ये प्रॉब्लम हो रहा है नाला का? नाला का तो बांसकोटा में ही होता है, और उधर झारखंड में होता है, मतलब वो नीचे हो गया, तो यहाँ का लेके उधर तक जाता है, तो पानी उधर में तो नीचे में खेती है, और खेती का ये में होता है, उधर तो पानी ज्यादा होने से उधर का तो पानी ज्यादा ऊपर वापस से ही आ रहा है, इसका बाद ये घर में वापस आके घुसता है, वाल पार होके, वाल बनाने से भी वाल से वापस आता है ना, ज्यादा पानी बारिश देने से। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप म्युनिसिपल्स को जाकर कंप्लेंट दर्ज करोगे? नहीं, ये बारिश समय में तो उस दिन हम देखा था, मतलब हम तो नहीं गए, मतलब वो लोग भी आके, ऑफिसर लोग भी आके, और 11 साल को भी देखा है ना, बारिश का समय में, हाँ पानी ऐसे जमा हुआ था, रास्ता में भी ऐसे ब्लॉक होके, उसमें वो लोग भी देखा है, क्या करता है क्या नहीं करता है हम तो मालूम नहीं है, वो लोग देखता है पानी कैसा है, पानी बारिश में तो ये साल में तो ऐसा होता ही है, हाँ, और आने वाला साल को भी ऐसे ही होगा, ये साल को भी ऐसे हुआ था, उस दिन भी पानी ज्यादा था ना, हाँ हम लोग का ड्रेन भी वापस आया था ना, पानी बहुत ज्यादा होके। इधर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ का जो ड्रेनेज एरिया है, जो नाला है, उधर से पानी निकल के आ रहा है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका दुकान भी सामने में ही है? बारिश होने से, पानी जमा होने से फिर स्मेल तो ज़्यादा निकलता है, धूप देने से ज़्यादा निकलता है, वही पानी ज़्यादा होने से उठा नहीं, हाँ कीचड़ हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। ये ठीक कर देने से अच्छा होगा,
कस्टमर घुसता नहीं है, बदबू है, बैठता नहीं है, चला जाता है। तो ठीक कर देने से तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि आपका दुकान जो है वो जस्ट नाली का सामने में है, और जो नाली का जो हाइट है वो जो थोड़ा नीचे होके है, जिस वजह से नाली का पानी बाहर निकल रहा है और शायद आपका दुकान तक भी आता है बारिश का टाइम। यहाँ तक उठने के लिए करता है बारिश आने से। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम तो हम लोग का ये ड्रेन ना, मेरा मेन प्रॉब्लम है ड्रेन जो, तो उसका वो बारिश का वही प्रॉब्लम है मेरा, बारिश आने से अंदर घुसने का पड़ता है। और मेरा तो खाने पीने का दुकान है तो थोड़ा मतलब वो होता है, तकलीफ होता है हम लोग को ना बारिश में। तो खुद से हम लोग, हाँ, कस्टमर्स भी इतना नहीं आता है, वही है ना मेरा प्रॉब्लम है। हम इसलिए हम बोलते हैं ऑफिस वाला लोग को भी जो है ना, उसको काइंडली आके थोड़ा हम लोग को बना देने से ठीक है, ड्रेन सिस्टम अच्छा कर देने से ठीक है वो लोग बोल के। और हम लोग एप्लीकेशन भी दे के रखा है उस पर। आया था बेचारा सर लोग भी आया था, वो लोग भी देख के गया है। पूरा पानी ये आपका पूरा जाम होके बैठता है, उतना बबल्स गंदा ना, इतना बदबू भी आता है। तो हम लोग वो भैया हम दोनों वो मिलके थोड़ा वहाँ में पाइप घुसा के वो ड्रेन में थोड़ा फिट किया, तो अभी थोड़ा पानी कम है, लेकिन बारिश आने से तो पूरा घुसने के लिए करता है। तो अभी आपका वो साइड मार्केट लाइन से पूरा पानी आके यहाँ में आके मेरा जमा हो जाता है। तो क्योंकि आप लोग इधर रहता है, आप लोग यहाँ का बांसकोटा का लोकल्स है, तो अगर आपको कुछ बोलना होगा म्यूनिसिपल्स को या स्मार्ट सिटी को, तो आपका कंप्लेन क्या होगा? हम तो बोलेगा कि मेरा ये पहले हम तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको पहले सही कर देने से ठीक है ना बोल के, हम तो वही बोलेगा। बिजनेस इफेक्ट हो ही रहा है, बहुत हो रहा है अभी। कस्टमर्स भी बहुत नहीं है, आता नहीं है ना कस्टमर, तो इतना गंद मारता है, बदबू है दीदी बोल के। वो लोग खाएगा भी कैसे ना? हम लोग भी खुद बेचते हैं, हम लोग भी खाना पीना खाता है, तो हम लोग भी खुद इतना घिन लगता है, अब यही बोलेगा। तो वो लगता है, तो वो लोग तो कस्टमर्स कहाँ आएगा, वो लोग तो पैसा दे के खा रहा है ना, वो भी है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है जो भी हो, आपका काउंसिलर जो भी हो ना, सर लोग को प्लीज़ काइंडली आके इसको हम लोग का ड्रेन को ठीक कर देने से ठीक है बोल के। मेरा बोल के नहीं, ये लाइन पूरा ड्रेन खराब है, हाँ पूरा खराब है ना। आप वहाँ भी जाके देखिए ना, घर लोग में पूरा गंदा गंदा पानी घुस के बैठा है। ये घर में तो पूरा पानी पूरा अंदर तक घुसता है बेचारा। ये जो बूढ़ा बैठता है यहाँ पे, नेपाली बूढ़ा, उसका तो पूरा अंदर तक घर में घुसता है। बहुत प्रॉब्लम देख के खुद को ही खराब लगता है। इसलिए हम काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं सर लोग को, प्लीज़ आके थोड़ा हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा बना दीजिए ना बोल के। मेरा तो ये एक साधन है बिजनेस का ना। After inspecting the possible locations, we got to witness that the localities such as Baskota and Nero residents in Jarkong, they face drainage issues and proper sanitation maintenance there. The market area in terms of drainage system is maintained well enough, but insider residents complain about not having drainage system in their areas, where in some areas drainage channels are constructed but with no proper measurements in extreme high or low slopes, causing the drainage water to stretch outside the drain and cover the lands with dirty water, muddling the daily life of public and the households. Where is the grey water in drainage channels discharged? That is also one of the biggest concern. And if the grey water is discharged in the main river source, then does the grey water go through the treatment process first for the safe water disposal? That is the question we need to ask the smart city and the municipals accounted for. I hope this coverage helped. It's reporter Anjali Payang with my cameraman Krishna Prasad. Let's wish for the best for this monsoon.